We are going to draw the base first of all. That is this much. This is 11. So I'm going to draw a line that is of 11 centimeter. Okay. So let's do that all together. I'm going to check your work. So make sure you're doing it alongside with me. So 11 centimeter up till here. So that is my base. Whatever the parameter is being given, that will be your base. Okay. Now, once you are done with it, take this guy along and इसको यहाँ से हटा देते हैं. अब bring your compass along. अपना compass लेके आओ बढ़िया सा. compass यहाँ पे रखेंगे. हम कोशिश करेंगे अब यहाँ पे क्या बनाने की 30 degree angle बनाने की. Okay. So if you are not comfortable with making with compass, no issues. You can even use your D. Your D. Now if you use your D, keep the midpoint at this right over here. Trying my best to use the D over here. Yes. Now let's see where is my 30 degree. 30 degree is right on over here, right? 30 degree is right on over here. Now let me take this D and move it up. Now let's join it with the scale, or I can use this only and use it like a scale, like you people do. So I think we can use it as a scale. Can we? Yes, we can. Okay. Just a bit down, will you? I gotta use the scale. This is too messy. Here we go. What I'm doing, I'm trying to join these. Okay, I'm trying to join this, which I'm not able to. Okay, now I can. So let's take the color black again, and let's join this line like this. Okay. So this is a line. This is a 30 degree line. Now let's mark it like that. Okay. So now you have drawn a 30 degree angle over here. Now what you do, you try to, okay, you try to make a 90 degree angle on the other side. So we are going to make a 90 degree angle on the other side like this. Okay, so I'm just going to mark it. This is my 90 degree point. Going to go this way, bring back my scale, turn it around 180 degrees. Now bring back over here. I know my scale is not perfect, but that should do. गुड गुड इवनिंग बच्चे, कितनी बार गुड इवनिंग करोगे, इस पे ध्यान दो. ओके, सो ये 90 डिग्री एंगल बन गया हमारा. So let's remove this, let's remove that. Okay. Now the next step is to make an angle bisector of these two. Okay, we are going to make an angle bisector of these two. And how we are going to do that? You know that already. We have done that in first exercise. So what we are going to do the exact same thing that I am doing. Okay, open this compass, open this compass. Now see how much you have to open, that I will tell you. More than half of this angle, right? So let me, more than half, I guess this will do, right? This is more than half. So I'm going to keep my needle over here and let me turn it a bit. So, okay. Okay. So let me change the color of the pen. I guess I can change it out from here. So if I try to make, okay, let me first erase the inside part so that you can see. Okay, my bad. How we undo here, that's how we do that. So we have to make perpendicular bisector of what? Not the perpendicular bisector, bache. We have to make the angle bisector, okay? We have to make the angle bisector. I don't know what is wrong with this guy. Okay, just a minute. Can we make our eraser small? Can we? I don't think so. Okay, kind of works for me. We are going really slow, but that's okay. So now I'm going to draw an angle bisector for this.
This is how we are going to do that. See, we have drawn an arc. Now keep the same guy over here, and let's turn it a bit. Let's turn it a bit. Okay. Now let's make an arc over here, something like that. Now let's bring this cute little guy over here. Let's rotate it. Let's draw the arc over here, like that. This is the angle bisector. Now let's join it up. So if I join it up with the scale of cos, what I'm going to do, I'm going to first mark this point. Now I'm going to join it with a scale. How I'm going to do that? Observe. Kind of a bit more tilt, and I'll be done. Yes, makes sense. So let me take a different color for that one. There we go. Now let me do the exact same thing. We are going to draw an angle bisector for 90 degree. यहाँ तक किसी को क्लियर डाउट है तो पूछो बच्चे अभी तक बहुत इजी है कोई डाउट है यहाँ पे okay good so I'm going to draw the angle bisector for the next line okay for the next angle so more than half खोल लेते हैं इसको so more than half ये पूरा है तो इससे थोड़ा सा कम कर लेते हैं ठीक है let me change the color to blue for you and let's draw the angle bisector again so you can just bring this over here let me erase that little part for you okay now I'm going to bring this compass over here now let us draw oh that was not supposed to happen yeah so this is an arc okay now keep this guy over here okay an arc keep this guy over here don't forget to rotate it if you're using my software and now don't forget to change don't do any kind of changing in the size of the compass so though I did it myself so let me bring that okay why is letting this yes now let's join it up with a scale the angle bisector देखो बच्चे बहुत आराम से हो रहा है एक तो सॉफ्टवेयर की वजह से भी और एक बेनिफिट तुम्हें ये होने वाला है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिपिकल हो जाता है इसका डायग्राम तो अगर तुम्हें इसका डायग्राम समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है क्योंकि यही सबसे टिपिकल हो जाता है बच्चों के लिए तो अब देखो क्या हुआ है ये जो तुम्हारा पॉइंट मिला है दिस पॉइंट राइट ओवर हियर ये वाला पॉइंट ये तुम्हारा पहला पॉइंट है तुम्हारे ट्राइंगल का जो ए पॉइंट बनेगा सो विल कॉल दिस ए पॉइंट हमारे पास दो पॉइंट और चाहिए बी और सी अभी मिले नहीं है ये ए पॉइंट है ए पॉइंट कैसे मिला एंगल बाइसेक्टर्स बनाए एंगल के जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने ए पॉइंट दिया अब बी और सी कैसे मिलेगा ध्यान से देखना है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओके सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस ओके लेट्स कीप दिस ओवर हियर we are going to draw an angle bisector of this a and this let's name it something let's name it x and this is y I'm going to draw an angle bisector of perpendicular bisector of ax so how we do that we already know we will open this more than half of the length of ax so let me rotate it and let me open it like more than half of ax let me read a bit more so that I can see I'm opening it more than half of ax you can see right so let me change the color to I don't know no red is already there how about green so let's do the perpendicular bisector a beautiful cut तो ये over तो here ए वाई है ना क्या बच्चे ए वाई ये तो आप ए वाई का परपेंडिकुलर this is बाइसेक्टर ax का perpendicular bisector this is ay okay ये जो यहाँ पे मैंने बना रखा है ये ay है बच्चे ठीक है मैं अभी ax का perpendicular bisector बना रहा हूँ ठीक है इस लाइन का एक्स जो 90 डिग्री है नहीं y है 90 डिग्री दिस इज y
x is 30 degree, then we draw an angle bisector. ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री है, उसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाया है, जहां पे दोनों एंगल बाइसेक्टर मीट करे वो पहला पॉइंट है ट्राइंगल का. ओके, गॉट इट? डाउट है तो पूछो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, यू डूइंग इट फर्स्ट टाइम. पूछो कौन सा स्टेप में डाउट है. नो भैया. ओके, सो पहला आर्क यहाँ पे लगा दिया, दूसरा आर्क हम लगाएंगे नीचे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनाते थे, इफ यू रिमेंबर. So I'm going to take this over here. Now let me draw an arc over here as well. अब मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ. And I have to rotate it again. Something like that. So I'm going to draw an arc over here. Let me bring this over here and draw a proper cut so that they should intersect, right? So yeah, they should intersect. Now it is beautiful. Let's go to the other side. Let's rotate it a bit. Oh, you don't get distracted. Okay, just a bit more. Now I'm going to rotate this beautifully. And if I draw the, which you cannot see, if I draw, even I cannot see, now I can. So if I draw this, and then I bring this guy and rotate. Oh, why this keep happening? मैं इसके बाद आप तुम लोगों को समराइज करूंगा, डोंट वरी कि क्या किया गया है. ओके, आई नो बहुत सारे स्टेप्स हैं, तुम लोगों ने अभी तक इतने सारे स्टेप्स वाला नहीं किया है, बट अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर लाइफ में, है ना. So going to put a cut over here. Now that's good. Perfectly fine. Now see, I can draw the perpendicular bisector over here for line AX. What I will do, I will just join these up. So let's join these up. This may not be perfect, but yes, kind of works for me. So I'm going to use that red line over here. Okay. So यहाँ पे जो तुम्हें अभी ये पॉइंट मिला है, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट मिला है ये वाला पॉइंट. Just a second, let me plug in the charge. यहाँ पे बच्चे अभी जो तुम्हें पॉइंट मिला है, इस पे जो इंटरसेक्ट कर एक्स वाई पे, वो तुम्हारा बी पॉइंट कहलाएगा. लेट्स कॉल इट पॉइंट बी. दिस इज बी पॉइंट. अब ऐसे ही तुम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, ठीक है. आई एम शोइंग इट अगेन. नाउ वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर व्हाट, फॉर ए वाई, द काम आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट, ए वाई. सो हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ खोलेंगे पहले. सो ए वाई का इतना लेंथ है पूरा, इसका मोर देन हाफ इतना ले सकते हैं हम. सो इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं बढ़िया से. सो अब इसका बनाता हूँ मैं, एक यहाँ कट, फिर एक नीचे की तरफ. सो लेट मी घुमाओ इट, राइट. ओह, तुम भाई साहब क्यों घूम रहे हो? ओह, I should get a prize for using this software. Actually, it's really difficult. Okay. वाह, क्या बात है. Let me undo that. Go down. Wow. Now, it's going all the way up. Okay, this works for me still. I got an arc down, I got an up. Now I'm going to take the pointed guy over here. Now an arc to close this up. So an arc like this. Now this will be in the down part as well. So an arc over here as well. I guess it's because of the size. Yeah, now it does make sense. Now let's join them up.
with a scale again. So I'm going to use the scale for the perpendicular bisector to join that up with the red line because I used that before as well. So now I'm going to rotate it. Makes sense now. A bit tilted. Hopefully this time, yes, it does. So going to join it. There we go. Now, the third point you just got. This is the C point, okay? Now what you can do, you got 3 points, you just join the points to get the required triangle. So I'm joining them roughly. This is AB, BC is already there, and this is AC. This is AC. You can be very like surprised you're getting angle C as 90, which you wanted, right? This will be 30 if you measure it. And if you measure the sum of AB plus BC plus AC, you will get 11, right? So this is your triangle what? This is your triangle. If you have to draw the triangle what? You have to draw the triangle XYZ. Okay, that's why Kamna was getting confused, like why are we getting this? So you can do one thing. You can name this instead of XY, you name this A and B. Okay, you name this A and B. A and O. Let me remove this scale. Okay. This as well. I don't need it anymore. Let's name it B. And let's call the required triangle which we are getting. This is X, right? What were the angles that we took at the base? Y and Z. So perfectly fine. In the base, we should get Y. We should get Y, Y. And this must be G now instead of C. So this is my required triangle, XYZ. अब जो मैंने करा है वो क्विकली हम वीडियो के थ्रू रिव्यू करने वाले हैं. जिसको नहीं समझ आया है वो तो और ध्यान से देखे, जिसको आगे वो रिवाइज हो जाएगा उसके लिए. So I think some of know this one we have done. Difference also we have done. Perimeter one we want, right? Okay. Yes, this is the one. Okay. Observe very carefully. जो steps मैंने किए थे बिल्कुल वही करेंगे. Different example लेकिन steps वही होने वाले हैं. ठीक है. जिसको सामने नहीं आया वो ध्यान से देखे, जिसको आ गया वो और ध्यान से देखे, तो और अच्छे से निकल जाएगा आगे. Right? चलो. So sound is not there. I'm going to explain it. So this was the question. Sum was 15, angle B was 70, and C is 40. This is the type when perimeter is given. So पहला step क्या होता है? 15 सेंटीमीटर बनाना. जो भी perimeter दे रखा है वो बनाना. Right? So perimeter पहले 11 था, 15 बनाया. फिर x पे बना दिया हमने क्या? 70 डिग्री. फिर ऐसे इधर क्या बना दिया? 40 डिग्री. जैसे मैंने बनाया था 30 और 90 वाला. राइट? फिर क्या करा था? इसके एंगल बाइसेक्टर, इफ रिमेंबर. तो हम इनके एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे. राइट? अभी तुम लोगों ने शो करना है अपना वर्क, इसलिए पूछूंगा अभी मैं कैमरे के थ्रू या फिर व्हाट्सएप करो. सो यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना है 70 का और फिर 40 का ही बनाना है. तो देखो अभी वही करेगा. 70 का एंगल बाइसेक्टर, यू कैन ड्रॉ प्रॉपर आर्क और उसके से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी. सो हमने 70 का एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसको ज्वाइन कर दिया स्केल से. फिर हाँ बच्चे क्या हुआ? ये क्वेश्चन आना नहीं है, किसने बोला? हाँ भाई यश, क्वेश्चन क्यों नहीं आना? कटेड सिलेबस में है. कटेड सिलेबस में. अच्छा, अगर 10th में आओगे कैसे करोगे? अब बताओ, पूरा चैप्टर करा दे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दूं क्या? नहीं ना. और भी किसका जिसके सिलेबस में नहीं आ रहा है? दो बच्चों ने सही बनाया, गुड. कोई नहीं यश, देख लो, कभी नॉलेज वेस्ट नहीं जाती. ठीक है, देख लो फिर. देख सकते हो हमने क्या करा है, एंगल बाइसेक्टर बनाया. जहां पे वो मीट कर रहा था हमने उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? यू कैन सी हमने ए नाम दे दिया. फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स का. देखो, एंड वी जॉइन देम अप. गुड. अदर्स आई कैन सी योर्स इज वेल. गुड. अगर चेक करना है यू कैन चेक. देखो अभी उन्होंने ज्वाइन किया, यहाँ पे चेक करना है तो इन तीनों का सम देखोगे तो इन तीनों का सम 15 आना चाहिए. राइट? और तुम्हारे वाले में 11 आना चाहिए. 11 नहीं आ रहा है, कम या फिर ज्यादा आ रहा है बहुत, तो मतलब कि तुमने गलत किया कंस्ट्रक्शन. और इन दोनों को मेजर कर सकते हो डी से. तुम्हारा वही एंगल बनना चाहिए जितना तुम्हारा यहाँ पे बना था. ठीक है. अच्छा, नाउ इन द एनसीईआरटी देयर इज एन एग्जांपल. 2 क्वेश्चंस हैं बस पेरीमीटर वाले, सो दोनों के दोनों कर लेते हैं.
यस सबको आ गया, मुझे लग रहा है सबको आ गया। यस एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों देखो एक एक स्टेप करके दिखाया मैंने तुम्हें। टेल मी यस और नो। यस सर, ये तो आपको फॉलो Yes, we are. करना है। सॉरी बच्चे, क्या बोल रहे हो? सर ये तो आपको फॉलो करके बनाया है। वेरी मतलब गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, गुड। सो okay, where was NCERT PDF? NCERT constructions. Let me see. I need to do one more example because there are just only 2 questions in NCERT for, I guess this is not. So example book खोलो, book में example देख रहे, नहीं तो मैं अभी सामने दिखा दे रहा हूँ। वो वाला example भी इसी की तरह है, वो भी ट्राई करना है अभी के अभी। मैं सिंघम क्यों बन रहा हूँ? अभी के अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो, अभी के अभी। सो यू कैन सी एक एग्जांपल है बस इसमें, देखो पेरीमीटर वाला है नहीं है, बिल्कुल पेरीमीटर वाला है। करो जरा ट्राई। और स्टेप्स नहीं लिखवाया मैंने, स्टेप्स यू कैन कॉपी डाउन एग्जैक्टली लाइक दोज इन योर बुक एग्जांपल में जैसा है। करो, जिसका हो जाए व्हाट्सएप करो ग्रुप पे, देखता हूँ मैं कैसे बनाया कैसे नहीं। भाई यही वाली कंस्ट्रक्शंस। हाँ बच्चे यही वाली है, बस क्वेश्चन डिफरेंट हो गया ना, देखो एंगल डिफरेंट ओके हो भाई। गए। डोंट फॉरगेट टू लेबल इट, ओके? टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ रश, डोंट हैव टू आउटडू एनीवन, जस्ट हैव टू आउटडू योरसेल्फ। फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का टेस्ट होगा बालक, पूरे चैप्टर का कंस्ट्रक्शन का। और हमारा मैथ्स का सिलेबस फाइनली खत्म हो जाएगा। फिर हम एक पूरा एक सैम्पल पेपर करेंगे और तुम लोग अपना मैथ्स के पेपर की डेट बताओगे सब व्हाट्सएप पे मेरे को। आज के आज ही, अभी के अभी नहीं, आज के आज। सर मेरा हो भी गया आज का मैथ का। कैसा गया भाई? सर अच्छा एक क्वेश्चन रह गया बस, बाकी सारे अरे सेट है। गधे, चल कोई नहीं, एक क्वेश्चन जो रहा वो ज्यादा नंबर का था। सर 2 या 3 मार्क्स का था शायद। नाक कटवा दी तूने भैया के हैं गणित में। तो सर कितने बाकी मार्क्स का का था क्या है, टोटल? बाकी आंसर भी मैच हो गए। 40। 40 मार्क्स का था। 30 प्लस आ जाएंगे? यस सर आ गए। 35 प्लस आ जाएंगे? 35 मेरी कैलकुलेशन से बन रहे हैं पूरे। अरे अरे, फिर तो 36.5। भैया चलो देखते हैं कैसे होता है। फिर भी गुड। और किसी का हो गया है? अनिरुद्ध का हो गया आई गेस, राइट? भैया मेरा भी यस हो सर। गया। ओके, तुम्हारा भी हो गया वैभव, कैसा गया? भैया बहुत अच्छा हो गया था। गुड। भैया तो पहला यूटी था मैथ का। कामना का नहीं हुआ मतलब? हाँ, एक सेकंड बच्चे, करो तुम लोग कंस्ट्रक्ट, एक सेकंड। यस बच्चे, तो मतलब टुष्टी का रह गया है और किसका रह गया? आदेश का रह गया आई गेस, और कामना का रह गया। हाँ, तो तुम लोगों का जो है मतलब ये फाइनल एग्जाम था जो हुआ है, अब नहीं होना मैथ्स का एग्जाम, खत्म हो गया नहीं ऐसा भैया कुछ इसके है? बाद फाइनल है, ये मैं यूट्यूब हुआ था।
अच्छा, अब व्हाट अबाउट यश? और इसके बाद है फाइनल। अच्छा, इसके बाद है फाइनल। तो अब फाइनल के लिए लग जाओ, मेन वो डिसाइड करेगा कैसा है, और मैं भी फिर डिसाइड करूंगा तुम्हें 10th के बैच में लेना है नहीं लेना, क्योंकि मैं 1-2 ही बैच रखूंगा नेक्स्ट ईयर भी। सो आई एम प्लानिंग कि 10th का रखूं, अगर मुझे लगेगा तुम्हारा बैच अच्छा रिजल्ट देता है, नहीं तो अदरवाइज आई विल टेक सम अदर बैच। अभी जल्दी से कंस्ट्रक्ट करो, सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप ऑन द ग्रुप। चलो देखो, वो लोग, तुम लोग होमवर्क करोगे, मेरे को भेजोगे लेटर ऑन। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन जल्दी से रफली बता दे रहा हूँ, वो भी तुम्हारा फिर होमवर्क होगा, तुम्हें फेयर अप करना है। ध्यान से देखो सब, स्टॉप करो बनाना जो भी बना रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, एक राइट ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 12 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज और अदर साइड का सम जो है 18 है। मतलब कि मान लो एक राइट ट्राइंगल बनाना है तुम्हें यहाँ पे, जिसमें जिसमें जो है बेस है, मान लो एबीसी है, बेस 12 हो और हाइपोटेन्यूज मतलब एसी प्लस एबी कितना हो, 18 हो, ऐसा बनाना है। तो देखो कैसे करोगे कंस्ट्रक्शन, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले यू विल ड्रॉ अ बेस 12 सेंटीमीटर का स्केल से, फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे कंपास से या फिर डी से, ऐसे 90 डिग्री बनाया। फिर जो सम दे रखा है 18, उससे इस पे कट लगाओगे। हमने ये सेकंड टाइप वाला, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन देता, कट लगाओगे 18 सेंटीमीटर कट लगाओगे इसके ऊपर कंपास से, स्केल से नाप के। फिर इसको ज्वाइन कर दोगे, मान लो ये एक्स है, इन दोनों का क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक्सी का, ये अब ये एक लाइन पे कट करेगा इसको यहाँ पे कहीं कुछ, तो ये जो पॉइंट मिलेगा यही ए होगा, और ट्राइंगल एबीसी विल बी योर रिक्वायर्ड राइट ट्राइंगल। सबको सामने आया? यस, और शुड आई डू इट अगेन? भैया मुझे नहीं आया। फिर से देखो, सबसे पहले बीसी बनाओ 12 सेंटीमीटर का, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ। ओके, सो 90 डिग्री बनाया ऐसे। फिर इस पे जो सम है, सम कितना दे रखा है 18, तो 18 सेंटीमीटर कट लगाओ, लेट्स नेम इट एक्स। नाउ बीसी बना चुके हो तुम बेस, इसको ज्वाइन कर दो सी एक्स को, सी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ये ये बाइसेक्टर बनाया, जहां पे कट करेगा इस पॉइंट को बी एक्स को, ये तुम्हारा ए पॉइंट होगा, ए सी को ज्वाइन कर दो, ए बी सी विल बी रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझ आया यस भैया। सबको? यस। सो नाउ ये, हाँ बोलो बच्चे, काम ना सामने आया बच्चे? आई डिडंट हियर यू। सो क्वेश्चन नंबर 4 and question number 5, we will do it right now and you will submit it, okay, after the class is over. And then day after tomorrow we are going to have a construction test, a beautiful test. You will have to get your compass and everything on that day. And कल मैं पहले साइंस का होमवर्क चेक करूंगा, फिर देखूंगा फिर क्लास में एंट्री हो, ठीक है? चलो, I will see you in the next session. Okay, take care.